हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे कोडिंग पांडा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जिसने गेमिंग इंडस्ट्री से लेके स्पेस एक्सप्लोरेशन तक सब कुछ बदल के रख दिया हो। सोचिए, आज जो अपने फेवरेट गेम्स खेलते हो उनका स्मूथ एनिमेशन, लाइटनिंग फास्ट रिस्पॉन्सिवनेस और पावरफुल ग्राफिक्स कैसे पॉसिबल है। या फिर जो आप नासा के स्पेस मिशंस के बारे में आए दिन सुनते रहते हो, जहां बिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस पर सेकंड रिक्वायर्ड होते हैं, आखिर वो कैसे होता है। इन दोनों ही एग्जांपल्स में एक चीज कॉमन है, गेस व्हाट, C++। जी हाँ दोस्तों, C++। चाहे वो एक छोटा सा एप्लीकेशन हो या एक फुल फ्लेज्ड गेमिंग इंजन की बात कर ले या फिर एक हाईली ऑप्टिमाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर ले, C++ provides the kind of control over the hardware and the system resources that most languages can only dream of. So C++ has shaped the many industries like finance, robotics and even the artificial intelligence. जब भी हाई परफॉर्मेंस, लो लेवल मेमोरी मैनेजमेंट और इफिशिएंसी की बात होती है, C++ ऑलवेज कम्स ऑन टॉप। DSA एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की दुनिया में भी C++ का एक अलग ही रोल है। STLs आर काइंड ऑफ गेम चेंजर। जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करने जा रहे हो तो ये बहुत जरूरी है कि आपके पास एक पावरफुल टूल हो जिसपे कि आप रिलाई कर सको, और C++ इज वन ऑफ देम। आई होप अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिर C++ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सो वेल, लेट्स गेट स्टार्टेड। वी विल कवर द बेसिक्स, जो कि हर बिगिनर्स के लिए जरूरी है। The first step in the programming, how to take the input and how to print the results. We will follow it by the basic C++ fundamentals like conditional statements, loops, data types, operators, arrays, strings, pointers, references, और सिर्फ इतना ही नहीं, we will deep dive into the function, recursion, basic OOPS concepts like inheritance, polymorphism, encapsulation, abstraction. We will compare struct versus class. And for the little bonus in the last, we will be covering how does your code actually get converted into the executable file. So you will know what's happening behind the scene when you run those code. I hope आप भी उतने ही excited होंगे जितना excited मैं हूँ। So बिना कोई वक्त गवाए, let's start our C++ journey. So let's start exploring the fundamental of C++. In this video, we are going to cover everything from basic syntax to advanced OOPS concept. First thing first, why C++? तो in the starting of the video, मैंने आपको बताया कि how C++ plays role in changing the game industry, operating system optimization and a lot more like NASA missions. In short, I can say that C++ is well known for its performance and efficiency that it provides, and the features that I can say that is amazing in C++. The first one is the powerful libraries that it has. आपने शायद STL के बारे में सुना होगा, standard template libraries. So you just have to think about the logic that you want to implement to solve the problem. Like you have some problem, you need to think about the logic. Okay, I am going to do it through this way. You just think about the logic, choose the perfect tool from the standard template library and just code it. In few line of code you will be able to implement your logic. So that's the beautiful things that the C++ provide. After the STL, the second thing is lambda function. So lambda function started supporting after C++11. In earlier version it is not supported. So like C++11 started supporting lambda. So lambdas are kind of the custom function that you required for especially like writing any algorithm. So this is the good tool that you can use. Other languages also provides the capability to write lambda function and that is really good. The next thing I will say is auto keyword. Auto keyword के बारे में more details में हम अपने implementations like when we will doing the DSA implementations अच्छे से जानेंगे. But auto keywords के बारे में what I can say that it is very good for clearness of the code. You just have to write auto and it will auto detect the data type which it needs to be assigned. So that is very good with the auto keyword.
So now we got to know that why C++ is important and the basic libraries or tools that it provides. The next thing is setting up your C++ environment. For that you need to install G++ and some IDE. I hope आपने पहले Sublime text setup का वीडियो देखा होगा. अगर नहीं देखा तो just click on the link above and go to that video and look at that how to set up Sublime. I will also attach the link in the description. So now you are all set. Get ready to code along Coding Panda. So the basic structure of C++ program looks like this. I'm going back to the IDE to show that how each and every components work. So here if you will see that the C++ program looks something like this, it will have a program name called codingpanda.cpp or like abc.cpp, whatever the program name. And basically C++ codes should be saved with the CPP extension. So that is what it is saying, that codingpanda.cpp, it means it's a C++ program file with the name of something abc.cpp or codingpanda.cpp. Next thing is include IO stream. So it's a kind of header that you include. So मैं इसके लिए एक separate video बना रहा हूँगा for in which I will explain that how you can import your own header, like something like this. So something like this, how you can do, I will be creating a separate video for this. So as of now, let's ignore this. So first line is include IO stream. It means it is going to include whatever pre-written in the IO stream header file. Coming to the next line, using namespace std. So namespace is kind of tool that C++ provide in which you can write your own functions and you can attach it to the namespace, like something like this. I am writing a code to give you an example. So here you can see I have written two namespaces, the first one with the name Ansad and the second one which Amit, and I also provided a function which is print, and that is just printing the name Amit Sarma and Ansad Sarma depending upon the namespaces. So how you can access the function or the variables inside the namespace, you have to do it something like this. Ansad and followed by two colons and then followed by the name that you want to take. This is how you used to define a namespace and this is how you used to call it. And the next thing, why we using namespace std. So basically in C++ there are two things. The first one is cin and the second is cout. So here if you have seen that cout, I have written cout and Ansad Sarma, it means that it will print cout. So if I will not include the std, I'm just commenting it as of now. If I will not include std, what it will do, I'm trying to run this code. So it will give error, like it is not able to classify that what do you mean by cout, what do I have to do to print this, or I don't know anything about cout. So the definition is not there. So I just have to do something like this if I want to use std namespace std. So here you can see the error is gone and my output is there in the output.txt, where you have to look for the output. So in this window you can see Ansad Sarma and Amit Sarma is printed. So and the error is gone after the building it, the build got successful. So something like this. For the std we usually used to import that because we do not want always write std cout and other stuff. So std is for that. I think that is clear. Call print from Ansaj, I have to specify Ansaj colon and print. Then if I want to use print from Amit, I have to define Amit colon print. So I am defining int n. Int is an integer. So we will learn more about data types in the upcoming part of this video. As of now you can consider that there is something called integers, and integers में क्या है, collect कर सकते हैं 10, 12, 15, -5. So kind of numbers it can store. अभी के लिए बस इतना ही जानिए, बाकी डिटेल्स में कि हाउ मच मेमोरी टेक्स एंड ऑल वी विल कवर इन डिटेल्स इन द अपकमिंग वीडियो. इफ यू वांट टू टेक एनी इनपुट फ्रॉम द यूजर for this integer, you have to do cin. Cin, what it signifies? It signifies that you want an input from the user. Then down to the next line is cout. So cin is for taking the input and cout is for printing the output. So यहाँ पे क्या किया मैंने, n के लिए
I provided an input of 5 and this line will take the input 5 and this line will print that in the output console. So I am expecting Ansar Sharma, Amit Sharma, and after that a 5 I am expecting. You can see it has printed a 5. So the next is data types in C++. C++ offers various fundamental data types like int, float, char, bool. बाकी लैंग्वेज में भी ये सेम कॉन्सेप्ट्स हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। तो C++ के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है इंटीजर्स, फ्लोट, कैरेक्टर्स, बुलियन, और इन ऑल डेटा टाइप्स के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो डेटा टाइप्स वी आर हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा टाइप्स इन C++ एंड ईच एंड ऑन डेटा टाइप्स हैव देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक। तो उसके बारे में चलिए डिटेल्स में देखते हैं। द फर्स्ट थिंग इज void. So void means nothing and nothing can't take any space, so it is 0, so it will not contain any space in our memory. The next thing I will say is bool. Bool is a data type like which we use to store either true or false, and it is having 1 bytes. 1 byte contain 8 bit of data, 8 bits. 1 byte equals to the 8 bit, and how it will look in your CPU, it will look something like this: 1 2 3 4 5 6 7 8. So each position can have either 0 or 1. It means every position can store two values, either 0 or 1. So how many combinations that we can make out of 8 bits? So we can make 2 to the power 8 combinations. So boolean की बात करते हैं तो boolean में only the last bit will be either 0 or 1. So you will say that कि okay, why, as we are utilizing just only 1 bit, why it's not 1 bit, why it's 1 byte, why we are allocating 1 byte of memory to the bool? The answer is very simple. In CPU, memories are divided into bytes, not bits, and also bitwise operators are quite costly. आगे हम लोग देख रहे होंगे bitwise operators के बारे में, और आगे आने वाली वीडियो में हम लोग bit manipulations के बारे में भी जानेंगे। bit manipulation के जरिए हम काफ़ी बेहतर लेवल के क्वेश्चंस को काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। उन चीज़ों के बारे में हम काफ़ी विस्तार से जानेंगे। अभी के लिए बस आप इतना जान लें कि boolean हैज साइज ऑफ 1 bytes. कैरेक्टर की बात करें तो कैरेक्टर इज ऑल्सो हैविंग साइज ऑफ 1 bytes. इट मीन्स कैरेक्टर कैन कंटेन्स ओनली 2 to the power 8 डिफरेंट और यूनिक कैरेक्टर, राइट, बिकॉज ओनली 2 to the power 8 combinations are possible. Sort की बात करते हैं तो sort is generally used for sort integers and it is having 2 bytes of size. So what it can have? It can have 2 to the power 16 values, different values. इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स में भी सेम यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका साइज 4 है. सो लाइक इट विल हैव 4 bytes, एवरी bytes विल हैव 8 bits. सो व्हाट विल बी टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन दैट इट कैन हैव? इट कैन हैव 2 to the power 32 combinations, राइट. सो एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा आपके जानकारी के लिए कि इंटीजर्स में आइडियली आप सोचोगे कि इन इंटीजर वी कैन स्टोर फ्रॉम 0 to 2 to the power 32, बट ऐसा नहीं होता है. इंटीजर का जो पहला बिट होता है उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं उसके साइन को स्टोर करने के लिए कि आइदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसको स्टोर करने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं. तो इस कारण से पहला बिट इज ऑक्यूपाइड, सो वी कैन यूज ओनली 2 to the power 31 बिट. सो क्या अगर हम रेंज की बात करें कि इंटीजर में क्या रेंज होंगे, तो क्योंकि पहला बिट जो स्टोर कर रहा होगा कि आइदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, so in negative it can go up to 2 to the power 31 and in positive it go up to 2 to the power 31 minus 1. So why it's minus 1? Because we are also accommodating 0 in integer. Integer can have either 0 or positive or negative values. So 0 is also accommodating the positive, so it is the range of the integers. बाकी के भी रेंज अगर आप जानना चाहते हो कि लॉन्ग का रेंज क्या होता है, लॉन्ग का रेंज क्या होता है, आप सिंपली गूगल सर्च करके देख सकते हो. इतना सिग्निफिकेंट है नहीं, बस आप समझ सकते हो 2 to the power 64 का रेंज में हम लोग स्टोर कर सकते हैं. आगे बात करते हैं हम लोग फ्लोट के बारे में. फ्लोट कैन स्टोर दी फ्लोटिंग वैल्यू. फ्लोटिंग वैल्यू व्हाट डज इट मीन? इट कैन स्टोर लाइक 3.2, 5.3, समथिंग लाइक दैट. इफ यू वांट टू स्टोर इट कैन स्टोर द वैल्यू इन इट. हम लोग थोड़े से कोडिंग में भी देख रहे होंगे कैसे फ्लोट को हम लोग डिफाइन करते हैं और कैसे इनपुट लेते हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ी ही देर में फ्लोट के बारे में. सेम इज विथ डबल फ्लोट का ही एक लॉन्गर वर्जन है और उसमें हम लोग बड़े वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं. सो वेलकम बैक टू द कोड पार्ट. सो हम लोग देखते हैं कैसे इंटीजर ले सकते हैं, कैसे लॉन्ग ले सकते हैं एंड डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई करते हैं, ठीक है.
ऑल अबाउट इंटीजर्स पहले देख लेते हैं। सो द बेसिक क्वेश्चन कि अगर आप एक इंटीजर को डिफाइन कर देते हो और अगर आप इसका वैल्यू असाइन नहीं करते हो और आउटपुट करते हो तो क्या होगा? सो इट विल प्रिंट एनी garbage value, like the term that we used to define, that it will print a garbage value. So whenever I will just build the program, you can see it has printed a garbage value, anything. But if you want to define it, you can define it by two way. Either you can assign it right away and build it 56, and if you want to take the input from the user, like even after defining, if you want to take the input from the user, it will override the value which will be provided by the user. Like suppose user provided 55 and you define it as 56, so what will happen when you will print the n, it will print the 55 value because that is the last assigned value to n. So the next thing is, बहुत बार आपका use case आता है कि in that use case what you have to do, you have to print the maximum value of the integer, or like you have to assign it to the maximum value. Like suppose आपको एक array दिया गया है और उसमें आपको find करना है कि minimum value क्या होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच हम लोग लगाते हैं कि सबसे पहले हम लोग जो रिजल्ट होता है या आंसर होता है, वी यूज टू डिफाइन इट बाय इंट मैक्स, क्योंकि इफ द एरे विल कंटेन ऑल द इंटीजर वैल्यू, सो लेट्स डिफाइन विद द मैक्सिमम वन, कि हम लोग आइटरेट करते समय देख सके कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा। नो नीड टू वरी अगर आपको समझ में ये चीज़ नहीं आई कि कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, हम लोग आगे क्वेश्चंस में देख रहे होंगे आने वाले वीडियोस में। बट अभी के लिए आप इतना जान सकते हो कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप एल्गोरिथमिकली और लॉजिकली आपको जानना होता है कि व्हाट मैक्सिमम वैल्यू द इंटीजर कैन हैव, एंड आपको असाइन करना होता है किसी इंटीजर में, तो आप वो कैसे कर सकते हो? सो टू अचीव दैट आई रिप्लेस्ड IOStream विथ BITS/std++.h। इस हेडर के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे आने वाले वीडियोस में। अभी के लिए आप इसको मास्टर हेडर समझ सकते हो। तो लाइक कि बहुत सी चीज़ें हैं, लाइक अगर STL की हम बात करें, जो कि हम फ्यूचर में इन डेप्थ बात कर रहे होंगे, तो अगर हमको लाइक इफ़ यू वांट टू डू अलोंग विथ IOStream, वी हैव टू डू समथिंग लाइक include set. अगर if you want to include vector, if we have to do include vector and something like that. We have to do it for the, like we have to do the same for all the things, like include set, include vector, include map, तो सब कुछ आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। बट अगर इफ़ यू आर डूइंग इट विथ IOStream, बट अगर BITS std C++ की बात करें तो इट्स अ काइंड ऑफ मास्टर हेडर दैट यू कैन थिंक ऑफ। सो ये ज़रूरत नहीं है आपको ऑल अदर चीज़ें इंपोर्ट करने की, ओनली वन हेडर विल टेक केयर ऑफ इंक्लूडिंग दोज स्टैंडर्ड हेडर्स। सो अगर हम बात करें, और अब नाउ इट विल कंटेन वाट एवर द फंक्शनलिटी दैट वी आर ट्राइंग टू अचीव। सो हम क्या वापस से आते हैं अपने प्रॉब्लम पे। सो हमारा प्रॉब्लम था कि वी वांट टू असाइन इन विथ value which is equals to the maximum value that integer can possess. So we just have to do int max, and when we will print it, it will just print the value, maximum value of the integer. Same goes with long. If I want to do it with long, let me do it with long, and I'm defining it as L. Okay, if you want to break a line, there is a syntax ENDL that you can use to break the line. So what it will do, it will press a enter after printing that line. You can just simply think around that. So here you can see, so here it's int max, long max. Next I am doing long max, then I will be, I am defining long as LL. सो हम बात करें इंटीजर मैक्स की। सो वी हैव डिफाइंड एन एज द इंटीजर मैक्स, एंड देन हम लोगों ने उसको प्रिंट किया लॉन्ग मैक्स एंड देन लॉन्ग मैक्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इंट मैक्स एंड लॉन्ग मैक्स इक्वल आ रहा है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि डिपेंडिंग ऑन द कंपाइलर, लॉन्ग कैन हैव साइज ऑफ आइदर 4 or 8. सो हेयर
इंटीजर का भी साइज 4 है, लॉन्ग का भी साइज 4 है, सो इट इज सेइंग द सेम, इट इज प्रिंटिंग द सेम आउटपुट, बट इन केस ऑफ लॉन्ग लॉन्ग इसका साइज इज 8, सो दैट्स व्हाई इट इज प्रिंटिंग द लॉन्ग लॉन्ग वैल्यू एज आउटपुट। अब बात करते हैं कि व्हाट इफ अगर हम उस वैल्यू को क्रॉस करना चाहें, आई सपोज आई वांट टू असाइन n इक्वल्स टू n+1, व्हाट विल हैपन? अपना ट्राई, चलिए ट्राई करते हैं। तो if I will do n equals to n+1, it means I am trying to exceed the value that an integer can store. Just printing the value. So what is this? This is not what we were expecting. It came back to the minimum value of the integer. So simple, there is a concept called overflow. So जब भी आप किसी वैल्यू को असाइन करना चाहते हो इंटीजर वैल्यू में, और वो वैल्यू जो है द मैक्सिमम रेंज दैट इन इट कैन पजेस से बड़ा है, तो इन दैट केस द वैल्यू विल सिंपली ओवरफ्लो एंड इट विल गिव यू इट विल नॉट गिव यू अ डिजायर्ड रिजल्ट। सो जब भी आप कोड कर रहे हो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखें कि अगर आपने इंटीजर वैल्यू असाइन किया है तो उस रेंज को क्रॉस ना करे। आपने जब लॉन्ग वैल्यू डिफाइन किया है तो लॉन्ग रेंज को क्रॉस ना करे, और जब लॉन्ग लॉन्ग डिफाइन किया है तो लॉन्ग लॉन्ग रेंज को क्रॉस ना करे। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू टेक केयर ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू दैट इट कैन परचेज। सेम इन केस ऑफ मिनिमम केस में भी सेम बात करते हैं। द सिंटेक्स इज ऑल्सो प्रीटी मच सिमिलर, जस्ट डूइंग इट फॉर इंट फॉर यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंटीजर मिन प्रिंट हो चुका है, दैट इज -2⁻31। सो हमने जाना इंटीजर्स के बारे में और लॉन्ग के बारे में, लॉन्ग के बारे में कि हाउ इट वर्क्स एंड कैसे हम मतलब डेटा टाइप्स बेसिकली है क्या। सेम अगर हम बात करते हैं कैरेक्टर्स के बारे में, लाइक शॉर्टली बात करते हैं क्योंकि वीडियोज लंबा नहीं करना चाहते हैं। कैरेक्टर की बात करें तो इट कैन पजेस अ कैरेक्टर। तो लेट्स सपोज कैरेक्टर सी, इट कैन हैव अ कैरेक्टर लाइक ए। It can't have two characters, so only one character will be there, so it can have character like A, and if I will see out it, it will just print the character. So if I will just print it, it will just print the character. So character A is printed. सेम हम बात करते हैं डबल के बारे में। सो डबल के बारे में मैंने आपसे बताया कि डबल और फ्लोट में we can have float f equals suppose 5.3, and we can just print the f. So what it will have f 5.3 as a value. Okay, क्या होगा अगर हम किसी इंटीजर वैल्यू में फ्लोट को डालना चाहें? लाइक सपोज एक i लेते हैं जिसका जो कि एक इंटीजर है, एंड इसमें अगर हम फ्लोट f को डालना चाहें तो क्या होगा? Just a curiosity, out of curiosity. So what will happen when you will put a float value in an integer? So अगर आप इसको रन करना चाहोगे तो here if you will see that after running फ्लोट वैल्यू में से जो आपकी वैल्यू जो कि डेसिमल पार्ट में थी इट गॉट रिमूव्ड, क्योंकि इंटीजर्स के पास वो फंक्शनलिटी नहीं है कि दे कैन स्टोर सम वैल्यू विच इज़ इन डेसिमल। ठीक है, बात करते हैं लाइक सपोज कोई दूसरा डेसिमल डिफाइन करते हैं, देन वी वांट टू प्रिंट इट। सो सेम इट विल हैपन इन दिस केस आल्सो, दैट कि इंटीजर वैल्यू जो है ट्रिम डाउन टू द इंटीजर वैल्यू। और फ्लोट में भी अगर आप देख पा रहे होगे यहाँ पे, तो फ्लोट में इट इज़ नॉट प्रिंटिंग द इंटायर रिजल्ट, इट इज़ जस्ट प्रिंटिंग 1 2 3 4 5 वैल्यू इट इज़ प्रिंटिंग। इट डिपेंड्स अपॉन कंपाइलर टू कंपाइलर, बट व्हाट आई विल सजेस्ट इन जनरल कि अगर आपके पास 1 2 3 डेसिमल वैल्यू में ही डील करना है तो फ्लोट का यूज कीजिए, अदरवाइज गो विद द डबल। ठीक है, तो जल्दी हम लोग बात कर लिया, हम लोगों ने बात कर लिया कैर के बारे में, फ्लोट के बारे में। अगर आप इंटीजर वैल्यू में फ्लोट असाइन करना चाहोगे तो क्या होगा, डबल के बारे में भी बात कर लेते हैं। डबल इज काइंड ऑफ इंट एंड लॉन्ग जैसे होता है वैसे ही डबल एंड फ्लोट होता है। इट मीन्स इफ़ यू वांट टू स्टोर बिगर वैल्यू फ्लोट वैल्यू यू कैन हैव इट इन डबल, अगर अदरवाइज फ्लोट इज ऑल्सो फाइन। आगे हम बात करते हैं जो लास्ट बच गया हमारे पास बुलियन, विच इज़ वेरी यूजफुल एंड बहुत जगहों पे इसका यूज़ करते हैं। तो बुल की बात करें तो हम अगर
बुल की बात करते हैं एंड सपोज इफ यू वांट टू सेट एनी फ्लैग वी कैन डिफाइन इट एज ट्रू। सो ट्रू मीन्स आप कह रहे हो कि एक इसका बुलियन वैल्यू ट्रू होगा, लेकिन अब जो अगर आप इसको फ्लैग को आउटपुट करना चाहोगे, सो फ्लैग आउटपुट विल बी 1। वाई इट विल बी 1? It will be 1 because here you can see the float value is 1, the flag value is 1. क्यों इसका flag value? Let me comment out all the things. So float value is 1. So why it is 1? Because it's true. So what I said कि true and false वो सिर्फ कंपाइलर को पता बताने, लाइक रिडल बनाने के लिए होता है कंपाइलर के टर्म्स में, either it's 0 और 1। और एक बात और, लाइक जस्ट फॉर योर नॉलेज दैट कि अगर फ्लैग में आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू प्रोवाइड करते हो और नेगेटिव, लाइक अपार्ट फ्रॉम 0 कोई भी वैल्यू अगर आप फ्लैग में प्रोवाइड करते हो तो इट विल ऑलवेज प्रिंट 1। सो आई एम ट्राइंग डिफरेंट वैल्यूज, like I am trying 5, then I am building it, it printed 1. I am trying -5 and I am building it, it is 1. It means कि अगर if I am trying 0 and then I am building it, it is printing 0. And if I will say false and then I will print, and then I will print, so it will again print 0. It means कि आप अगर किसी फ्लैग डेटा टाइप के वैल्यू में कोई भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स को डालते हो तो इट विल अगेन लाइक इट विल मैप इट टू ट्रू, एंड 0 के केस में इट विल मैप इट टू द फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स के केस में भी सेम है, ट्रू इज 1, फॉल्स इज 0। सो दैट इज इन केस ऑफ बुलियन। सो आई होप आपको डेटा टाइप्स क्लियर हो गए होंगे अब तक। आगे हम लोग देखते हैं कि इन डेटा टाइप्स आर दी most powerful tool which you will be using across all the problem solving questions. So आप खुद से आप इसका एक प्ले अराउंड कर लीजिए अपने आईडी में कि इस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में क्या होगा, लाइक जस्ट टू गेन द कॉन्फिडेंस दैट हाउ डेटा टाइप बिहेव्स एंड हाउ वी कैन यूज इट करेक्टली। सो बाकी आप जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप मास्टर हो जाओगे कब किस डेटा स्ट्रक्चर का यूज करना है, कब किस डेटा टाइप का यूज करना है। सो डिपेंडिंग अपॉन द कंस्ट्रेंट ऑफ द क्वेश्चन आप इजीली डिटरमाइन कर पाओगे अगर आप कॉन्फिडेंट हो, अगर आपने ये प्रैक्टिस हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर रखी है तो डिपेंडिंग अपॉन द कंस्ट्रेंट ऑफ द क्वेश्चन यू विल बी इजीली एबल टू डिसाइड कि कौन सा डेटा टाइप यूज करना है और क्या यूज करना हमारा सही रहेगा इस क्वेश्चन के। द नेक्स्ट थिंग इज वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। So the concept of variables and constant is pretty much similar in all the programming languages. So if you define int age 25, इसका मतलब ये है कि आप ये वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो int age 25। अगर in the next line if I will write age equal to 30 and then I will print the output, what it will do, हमने अभी एग्जाम्पल में देखा what it will do, it will print age at 30. So age got modified when we assigned a value to it. So it is variable. Variable means you can assign a value or change the value of a variable. The second thing is const. Const is also a very good concept or good practice. So const float pi is 3.14. तो आप जानते हो कि पाई का वैल्यू कांस्टेंट है 3.14 और आप नहीं चाहते हो कि बाय मिस्टेक कहीं भी आप अपने प्रोग्राम में पाई का वैल्यू 3.7 सेट कर दो, 3.8 सेट कर दो, 2 सेट कर दो, आप ये नहीं चाहते हो। तो इस कारण से कॉन्स्ट डिफाइन कर देना एक दिस इज वेरी गुड थिंग दैट यू डिफाइन कॉन्स्ट फ्लोट पी आई इक्वल्स टू 3.14 ताकि आप बाय मिस्टेक भी इसके वैल्यू को चेंज ना कर पाओ। सो दैट इज ऑल फॉर वेरिएबल एंड कांस्टेंट कि कब वेरिएबल यूज करना है, कब कांस्टेंट यूज करना है, इट विल डिपेंड अपॉन योर यूज टाइप। So variables and constants are the easy and basic concept, but sometimes it helps you to organize your code and makes your life easy. अब हम कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो कंडीशनल स्टेटमेंट और कंट्रोल फ्लो सी प्लस प्लस में बात करते हैं। सो 3 तरीके के मेनली होते हैं। लाइक व्हाट डू यू मीन बाई कंडीशनल स्टेटमेंट कि अगर आप कुछ ऐसा डिसाइड करना चाहते हो कि कंडीशन अगर ये हो तो परफॉर्म दिस, अगर कंडीशन 2 हो तो परफॉर्म एनीथिंग एल्स, कंडीशन अगर 3 हो तो परफॉर्म एनीथिंग एल्स, लाइक डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन इफ यू वांट टू एक्ट समथिंग। और अगर आप चाहते हो कोई पीस ऑफ कोड जो है अगर कंडीशन मीट हो तभी वो पीस ऑफ कोड रन हो, इन दैट केस बी यूज्ड कंडीशनल स्टेटमेंट। सो मेनली 3 थिंग्स इज इफ, एल्स एंड एल्स इफ।
तो तीनों के बारे में चलिए देखते हैं हम लोग कि कैसे इसका यूज करते हैं। सो कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो लेट्स ट्राई टू कोड इट। सो सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको मैं इंटीजर प्रोवाइड करूंगा और उस इंटीजर में आपको बताना है कि आइदर इट्स ऑड और इवन। अभी के लिए क्वेश्चन मैं सिंपल कर देता हूँ कि द नंबर विल बी आइदर 0, 1 और 2। सो आइदर ये 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। सो व्हाट इज द कांस्टेंट दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट आई विल बी गिविंग यू ए n। So you have to take the input, and what is the constant of the question कि n can have only 3 value, either 0 or 1 or 2, और you have to tell me that कि ये odd है या even है। So how will you do it? So different तरीके से देखते हैं इसको, ठीक है। मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा आपको। इफ अगर n का वैल्यू अगर 0 है तो आपको क्या प्रिंट करना है, what do you have to print? You have to print even। अगर वैल्यू 1 है देन यू हैव टू प्रिंट ऑड, अदरवाइज अगर वैल्यू 2 है तो सो व्हाट वी कैन से कि अगर क्वेश्चन में पहले से आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्वेश्चन में पहले से ही दे चुका है कि हमारे पास सिर्फ 3 ही वैल्यू हो सकती है, आइदर इट्स 0, 1 और 2। सो जस्ट टू मेक द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट क्लियर टू यू, ऐसा क्वेश्चन होगा नहीं, बेसिक क्वेश्चन है बहुत ही, क्वेश्चंस कॉन्स्टेंट्स पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्योंकि क्वेश्चन में ही आपको मैंने बोला है कि n का वैल्यू आइदर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, और आपको बताना है कि आइदर इट्स इवन और ऑड। सो इसके बारे में हम लोग जान रहे होंगे आगे कि ये व्हाट डज इट मीन। अभी के लिए आप जान लो कि ये बस चेक करता है कि आपका जो n है 0 के बराबर है या नहीं है, और n अगर 1 के बराबर है इन दैट केस आपको प्रिंट करना है ऑड, और अगर नहीं तो फिर इवन। इट मीन्स कि थर्ड केस अगर 0, 1 नहीं है तो क्या होगा, 2 होगा। सो इन दैट केस यू हैव टू प्रिंट इवन, ठीक है। 0, 1, 2 ही हो सकता है। चलिए अब हम अपने कोड को ट्राई करते हैं। समवन हैज गिवन 2 and then I am running this code, so it has printed even। so someone has provided 2, it has printed even। तो कैसे प्रिंट हुआ होगा, चलिए एक बार कोड को हम लोग देख लेते हैं ऊपर से नीचे तक। ये पहले फर्स्ट लाइन में आया होगा, चेक किया होगा कि n 0 के बराबर है क्या, नहीं है, नहीं है तो इवन विल नॉट बी प्रिंटेड। एंड फिर इसने चेक किया होगा क्या n 1 के बराबर है, तो 1 के बराबर नहीं है तो ये ऑड विल नॉट बी प्रिंटेड। अगर उसके बाद इसने चेक किया होगा कि अगर 0 और 1 में से कुछ नहीं है मतलब कि 2 ही होगा, 2 होगा विच इज इवन, सो इट विल प्रिंट दिस लाइन। तो सिंपल आप समझ चुके हो कि इफ, एल्स इफ और एल्स का यूज करते कब है, और बाकी आगे के आने वाले क्वेश्चंस जब हम कर रहे होंगे तो काफ़ी फ्रीक्वेंटली हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज कर रहे होंगे। सो द होमवर्क फॉर यू टू लर्न अबाउट द स्विच स्टेटमेंट कि स्विच स्टेटमेंट कैसे काम करता है। लाइक अभी आपने देखा यहाँ पे कि इफ़ स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट कैसे काम करता है। अब आपको स्विच स्टेटमेंट के बारे में आपको खुद से जानकारी इकट्ठा करनी है कि हाउ इट वर्क्स। सिंपल इसी कोड को, जो आपने कोड लिखा है मैंने 3 लाइन का कोड, इसी कोड को आपको स्विच स्टेटमेंट से ट्राई करना है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, लूप्स इन C++। सो 3 तरीके के लूप्स होते हैं। द फर्स्ट इज फॉर लूप, द सेकेंड इज वाइल लूप एंड द थर्ड वन इज डू वाइल लूप। अब ये लूप्स कैसे काम करते हैं, कैसे इटरेट करते हैं, सो लेट्स गो बैक। चलिए देखते हैं लूप्स इन C++। तो बेसिकली व्हाट डू वी मीन बाय लूप। सो लूप आप बोल सकते हो कोई भी टास्क जो आप रिपीटेटिव वे में कर रहे हो, दैट इज अ लूप। जैसे कि सपोज यू आर ए कॉलेज स्टूडेंट, you are waking up early in the morning, you are going to the college, again coming back after dinner you are sleeping, and then again next day आप फिर से कॉलेज आ रहे हो। सो यू आर इन अ काइंड ऑफ लूप जिसमें कि आप घर आते हो, आप पढ़ाई करते हो, सोते हो, मतलब एक आपका रूटीन लूप में चल रहा है। सेम चीज़ हम बात करें कि ये पहले दिन होता है, फिर दिन से रात होता है, रात से दिन होता है, दिन से रात होता है। सो ये चीज़ें भी, नेचुरल फिनोमेना भी ये लूप में चल रही है, रिपीट हो रही है चीज़ें। तो कोई भी चीज़ जो रिपीट हो रही है हम बोल सकते हैं कि लूप में चल रहा है। एग्जाम्पल आप ले सकते हो घड़ी का। घड़ी में जो आवर का कांटा है, जो मिनट्स के कांटे हैं, जो सेकंड्स के कांटे हैं, एक फिक्स्ड एक्सिस पे रोटेट करके एक लूप में वो चल रहा है और हमको डिजायर्ड आउटपुट दे रहा है कि
क्या टाइम हुआ है अभी। सो आई होप कि लूप क्लियर हो चुका होगा कि अब इन सी प्लस प्लस देर आर 3 काइंड्स ऑफ लूप। द फर्स्ट वन इज फॉर लूप, द सेकेंड वन इज वाइल लूप एंड द थर्ड वन इज डू वाइल लूप। सो तीनों को चलिए अब हम विस्तार में देखते हैं कि तीनों काम कैसे करते हैं और किस सिचुएशन में किसका यूज करना सही रहता है। फॉर लूप की बात करें, आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन दैट यू हैव टू प्रिंट एवरी नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 10। 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर को आपको प्रिंट करना है। जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन। So you can, like, if you don't know loop, what you can do, you can say कि okay, I will do it like this: C out 1 ENDL, then I will do C out 2 ENDL, and I will do something like this till 10, right? What till 10 I will do. So that is not a efficient way to do anything कि आप if you want to do कि okay आई हैव टू प्रिंट समथिंग फ्रॉम, चलिए ठीक है 1 से 10 के लिए आपने प्रिंट कर भी दिया, बट व्हाट इफ आई विल से कि 1 से लेकर 1000 तक प्रिंट करना है, 1 से लेकर 5000 तक प्रिंट करना है, ठीक है। सो लूप विल कम इन टू द एक्शन। सो हाउ वी विल लिवरेज द लूप टू डू दिस टास्क? So I will be using for loop for int I. Suppose I am taking integer I which I will assign it as 1 because I want to print from 1 to 10, and I will be till, okay, the first is the assign कि you have to assign the value of the integer. The first one will be I. The second thing कि आप कहाँ से कहाँ तक, like कंडीशन क्या लगाना चाहते हो I पे। So I पे कंडीशन I am putting I less than equals to 10 and then I am doing it I plus plus. So I am explaining what it will do internally. So this is a operator. In operator section of the C++, we'll be learning more about the other operators. So this operator is responsible for returning us a boolean value that either it's 1 is less than equal to I or not. So this is less than equal to operator and it is responsible for returning that either I is less than equal to 10 or not. So what it will do, it will say okay, I am initializing I with 1. The second line will say okay, we have to continue executing the loop until I is less than equal to 10. And what does I plus plus will do? I plus plus will increment the I with count 1. Like suppose if I was 1, next time I will be 2, again the next time I will be 3. We can also do it something like this. If we don't want to do I plus plus, we can do I plus equals to 1. Both the lines will do the same. I'm trying to put it C out I. So here if you will see, we have printed 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सेम फॉर लूप का एक और वेरिएंट हम लोग देख लेते हैं कि लाइक सपोज कि आई जस्ट वांट टू प्रिंट ऑड वैल्यूज। आई से स्टार्ट हो, मतलब 1 से स्टार्ट होके जो भी ऑड वैल्यू है बस वही प्रिंट हो, इवन वैल्यू प्रिंट ना हो। सो आप जानते हो कि इफ एनी नंबर इज ऑड एंड इफ यू विल ऐड 2 to that number, it will again return you a odd number. Like suppose 1 is odd, 3 will also be odd, 5 will also be odd. So आप यहाँ पे अगर ऐसा करते हो कि I equals to I plus 2, तो it will print odd. तो यहाँ पे अगर आप दूसरा लाइन देखोगे तो यहाँ पे it just printed odd number, ठीक है। फॉर लूप के बारे में हमने जान लिया। अब हम बात करते हैं अगले लूप के बारे में। सो दिस वाज फॉर लूप। अब हम अगले लूप के बाद में बात करते हैं कि वाइल लूप। सो वाइल ऑल्सो प्रिटी मच बिहेव्स इन द सेम वे। तो सपोज आपको सेम एग्जाम्पल मैं फिर से दे रहा हूँ कि अगर आपको प्रिंट करना है 1 से लेकर 10 तक यूजिंग वाइल लूप। सो हेयर आई एम प्रिंटिंग, just to be clear, just printing here. Okay, पहले मैंने आपको बताया था कि आप इंडेल की मदद से लाइन ब्रेक कर सकते हो। देर इज वन मोर सिंटेक्स टू इट। आपको जस्ट हैव टू पुट बैकस्लैश एंड एन। इट विल ऑल्सो break the line into 2 parts. So you can break the line in C++ using 2 way, either it's indel or backslash n. Just a bonus thing that indel is
स्लोअर देन बैकस्लैश एन। अब ये कैसे स्लोअर है, आप इसके बारे में अगर जानना चाहते हो, यू कैन गूगल इट एंड यू कैन लर्न अबाउट इट कि वाई इंडेल इज स्लोअर देन बैकस्लैश एन इन सी प्लस प्लस। सो इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, अगर आप लूप के अंदर आपको अगर लाइन ब्रेक करनी है, अगर लूप के अंदर कुछ प्रिंट करना है, लाइन ब्रेक करना है, आई विल ऑलवेज सजेस्ट टू यूज बैकस्लैश एन इन प्लेस ऑफ इंडेल बिकॉज बैकस्लैश एन फास्टर। सेम थिंग आई एम पुटिंग इट here. So I am defining a integer with I equals to 1. I will be using this, like I will be printing this integer again and again. So I have defined that, okay, I is initially 1 and the condition, like here we have defined the condition when I is less than equal to 10. In the second part of the for loop, here we have to define the condition in the bracket itself, like the bracket of the while itself. Okay, till when you want to continue this loop. Suppose we want to continue it till I is less than equal to 10. What I will do, cout I, and then I will do I equals to I plus 1. We can do I equals to I plus 1 or I plus plus. So I plus plus is same as the above one. So just to, like in the problem solving, or if you are doing some online contest, you want to save time. So in terms of whenever you are doing it, I equals to I plus 1, like if there is no conditional इंक्रीमेंट दैट यू हैव टू डू, लाइक सपोज करते हैं कि अगर आपको इंक्रीमेंट कभी 1 से, कभी 5 से, कभी 3 से, कभी 2 से करना है, इन दैट केस इट्स ओके कि आप आई प्लस प्लस काइंड ऑफ थिंग्स यूज कर भी नहीं सकते हो। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, क्योंकि आई को आपको बस 1 से इंक्रीमेंट करना होता है, तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि यूज आई प्लस प्लस इन केस ऑफ इंक्रीमेंटिंग इट एंड यूज आई माइनस माइनस in case of decrementing it, like if you want to decrease the value. So I'm just commenting it out. सो हमने फोर लूप लगा के किया था, सेम चीज़ आप देख सकते हो कि वाइल लूप लगा के हम लोगों ने किया है। सेम चीज़ चलिए अब हम लोग कर लेते हैं जो उसमें किया था हम लोगों ने, कि व्हाट इफ़ आई वांट टू प्रिंट ओनली ऑड नंबर। सो फॉर प्रिंटिंग ऑड नंबर आई एम अगेन असाइनिंग आई टू 1, क्योंकि यहाँ पे आई का वैल्यू चेंज हो चुका होगा। हम आई को बार बार आई प्लस प्लस कर रहे हैं, तो लास्ट में इसका वैल्यू, क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू 10 नहीं है, मतलब कि आई जो है 11 हो चुका होगा। इस कारण से अगेन आई एम असाइनिंग आई टू 1 सो दैट आई कैन प्रिंट द वैल्यू ऑफ आई। सो हेयर आई हैव प्रिंटेड अगेन द वैल्यू ऑफ आई, बट यहाँ पे वी डोंट हैव टू इंक्रीमेंट इट बाई 1, वी हैव टू इंक्रीमेंट इट द वैल्यू ऑफ आई बाई 2. So what did I do? What I will do? I will do the same that I have done previously, that I will assign I equals to I plus 2 and then I will just print it. So आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक वैल्यू प्रिंट हो गया। ठीक है, बस एक छोटा सा चीज़ कि अगर आप कोई ऐसा स्टेटमेंट दे देते हो जिसमें ये कभी फॉल्स ही नहीं होगा, लाइक सपोज यू सेड कि while 1 and do something. What does it mean कि while loops basically contains the condition inside it कि कब उस लूप को ब्रेक होना है, और आपने उस कंडीशन को ऑलवेज ट्रू कर दिया। इट मीन्स कि ये आप बोल रहे हो कि रन इट इनडेफिनेटली, तो इट विल रन टिल इनफाइनाइट टाइम, इट विल नेवर ब्रेक, दिस while loop will never break. So just for your information कि always check the condition that you are putting in either for loop or while loop कि आप कोई इनफाइनाइट लूप में ना जा रहे हो। और अगर आप इनफाइनाइट लूप में जा रहे हो, अगर आपके पास ब्रेक करने का स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो आपके इनसाइड में कुछ स्टेटमेंट होने चाहिए जो कि ब्रेक करने में आपका हेल्प करे। सो जस्ट ट्राइंग सेम, आई एम राइटिंग द सेम हेयर that we have to print all the value from 1 to 10. So I'm writing the code to print all the value from 1 to 10. I equals to 1 again I have defined, and then I will print cout I, and then I will do I plus plus. Then I will say कि अगर ये 10 को क्रॉस कर चुका है, if I is greater than 10, इट मीन्स कि अब हमको ज़रूरत नहीं है, नाउ वी डू नॉट नीड टू प्रिंट आई, सो वी कैन ब्रेक द स्टेटमेंट, राइट।
सो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने एक वाइल लूप के अंदर नेवर एंडिंग स्टेटमेंट डाला कि कभी ब्रेक ही नहीं करे, वो होगा वाइल. सो देयर इज अगेन अ कीवर्ड कॉल्ड ब्रेक विच यू कैन यूज टू ब्रेक द लूप. सो अगर आपको कोई लूप को ब्रेक करना है, आइदर इट्स अ फोर लूप और वाइल लूप, आप ब्रेक कर सकते हो यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट. ओके, नेक्स्ट थिंग ऑल्सो, there is one more keyword called continue, and continue means कि will tell you what does it mean. So I am again using for loop to make you understand continue. So okay, so the question is you have to print all the number from 0 to 10, but sorry 1 to 10, and you do not have to print 5, but not 5. Question is clear कि that आपको क्या करना है कि प्रिंट करना है नंबर, ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, बट 5 प्रिंट नहीं करना, यू डोंट हैव टू प्रिंट 5. सो उसमें उस केस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ़ आई इक्वल्स 5, मतलब अगर आई 5 के बराबर है, लेट्स कंटिन्यू. सो व्हाट इट विल डू, जो अगला लाइन है लाइक आई जो प्रिंट करने का लाइन है, वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा उसी लाइन से, लाइक लाइन नंबर 89 विच इज सेइंग कि अगर 5 के बराबर है तो कंटिन्यू करना है, लाइक फोर लूप विल कंटिन्यू डूइंग द एग्जीक्यूशन. तो वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा 5 के लिए, 5 प्रिंट नहीं होगा और ये फोर लूप वापस से चलेगा. अगली बार 6 के लिए चलेगा, लाइक सपोज ओके आई एम जस्ट ट्राइंग टू आइटरेट कि हाउ इट विल वर्क. तो फर्स्ट टाइम इट विल रन फॉर 1, इट विल प्रिंट 1, अगेन इट विल रन फॉर 2, इट विल प्रिंट 2, अगेन इट विल गो टिल 4 एंड इट विल प्रिंट 4. But in case of 5, as I have mentioned कि in case of 5, let's continue the loop. It means let's not go ahead, not go to ahead logic which is written. Let's continue the loop with the next repetition. So what it will do कि next iteration जो होगा loop का वो चलना start हो जाएगा. तो अगला चलेगा i equals to 6, अब वो 5 के बराबर नहीं है, अब वो 6 प्रिंट होगा. तो इट मीन्स कि सारे नंबर को प्रिंट करेगा बट 5 को प्रिंट नहीं करेगा. तो आई एम बिल्डिंग इट. यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लाइन है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हियर 5 इज नॉट प्रिंटेड. यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 इज प्रिंटेड, बट 5 यहाँ पे प्रिंटेड नहीं है. 6 7 8 उसके बाद की सारी नंबर्स प्रिंटेड है, बट 5 प्रिंटेड नहीं है. क्यों? क्योंकि हमने कंटिन्यू कीवर्ड का यूज किया. सो वी लर्न अबाउट फॉर वाइल. अब हम देख लेते हैं डू वाइल के बारे में. अगेन डू वाइल क्या है, दिस इज सिमिलर टू द फाइल. So what we used to say, do something and यहाँ पे write some code. I will write some code and while statement or while. Okay, here you can see in the while loop on the first line itself we are trying to check the condition कि either I is satisfying the condition or not. If not, let's not run the while loop. While and do while loop में बस इतना ही अंतर है कि in do while loop we will be checking this condition in the last. Now let's what we have to do. Again do I equals to 1 and let me use this. कंडीशन क्या पुट करना है यहाँ पे वाइल के अंदर में आपको कंडीशन पुट करना है. कंडीशन आप क्या पुट करना चाहते हो कि i लेस देन इक्वल्स टू 10 हो तब चलेगा ये, अदरवाइज ब्रेक करना है. यहाँ पे फिर से हमने किया i इक्वल्स टू नॉट i प्लस प्लस जस्ट आई डिड. हाँ, तो यहाँ पे आप डू वाइल लूप में देख सकते हो कि डू में मैंने किया कि जस्ट डू एंड परफॉर्म सम टास्क टिल व्हेन यू हैव टू परफॉर्म दिस टास्क वाइल दिस कंडीशन इज मीटिंग. सो दिस कंडीशन इज आई लेस देन इक्वल 10. तो जब तक ये कंडीशन लूप मीट हो रहा है टिल देन यू हैव टू डू इट. सो इफ़ आई विल रन दिस कोड, आप यहाँ पे देख सकते हो कि डू वाइल लूप जो है वहाँ पे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रिंट कर चुके हैं. ठीक है. सो अब इन तीनों लूप में एक डू वाइल लूप परफॉर्म्स स्लाइटली डिफरेंट कि डू वाइल लूप विल एग्जीक्यूट एटलीस्ट वन टाइम अगर ये कंडीशन मीट नहीं भी हो रहा हो तो. क्योंकि कंडीशन हम लोग चेक कर रहे हैं लास्ट लाइन में ना कि फर्स्ट लाइन में. तो कंडीशन नहीं भी मीट हो रहा होगा फिर भी डू वाइल लूप एक बार काम करेगा. जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि सपोज आई हैव सेड 11 and I am saying COMPA comparing while and do while loop. While and do while loop I am trying to compare. What I will say कि while
i is less than equals to 10. सो यहाँ पे मैंने क्या कोशिश करी है कि अगर लेस देन इक्वल्स टू 10 है देन आई को प्रिंट करना है, और डू वाइल लूप में भी मैंने यही कंडीशन लगाया है कि जब तक आई लेस देन इक्वल टू 10 है वी हैव टू प्रिंट, राइट. सो वाइल लूप, क्योंकि ये पहला ही लाइन फॉल्स हो जाएगा, आई इज नॉट इक्वल टू 10, इट विल नॉट एक्सिक्यूट एंड इट विल नॉट प्रिंट एनीथिंग. ओके, बट इन केस ऑफ डू वाइल, क्योंकि हमने चेक पहले लाइन में लगाया नहीं है, दिस लाइन विल बी एग्जीक्यूटेड, इट विल प्रिंट 11, then it will increment the value of I to 12, and then it will check that either 12 is less than equal to 10 or not, which is not less than equal to 10, do while loop will be break. So अगर आप इसको रन करोगे, so here if you will see comparing do and do while loop, and let me write something like this. inside while what it will tell कि हम लोग while के अंदर में है, and यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इनसाइड डू वाइल. सो इट विल टेल कि हम लोग डू वाइल के अंदर में. व्हेन आई विल रन द बिल्ड, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोगों ने इनसाइड डू वाइल से इसको प्रिंट किया है 11. सो दैट्स ऑल ऑन द लूप पार्ट. सो आई होप कि आपको पता चल चुका होगा कि फॉर लूप काम कैसे करता है, वाइल लूप काम कैसे करता है, एंड डू वाइल लूप कैसे काम करता है. बाकी जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे आपको ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी कि किन जगहों पे किस लूप का इस्तेमाल करना है. इन 99% ऑफ द केसेस यू विल बी यूजिंग आइदर फॉर लूप और वाइल लूप. So okay, let's talk about operator in C++. Operators are the special symbol which is provided by the C++, which you can use for various purposes. Like if you want to compare something, if you want to have some arithmetic or mathematical operations, और sometimes like modification भी अगर आप करना चाहो तो आप operators का यूज कर सकते हो. तो let's talk about the different kind of operators that C++ provides us. और just for your information, operators आप डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्विंग में काफ़ी ज़्यादा यूज कर रहे होगे, तो इस कारण से बहुत ज़रूरी है कि हर ऑपरेटर्स के बारे में आपको अच्छे से पता हो, ताकि आप इसका इफ़िशिएंटली यूज करके अपना समय, अपना कोडिंग का समय और अपना कोड जो है सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड और टू द पॉइंट लिख सको. ठीक है, तो लेट्स जंप इनटू द कोड पार्ट. सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज अर्थमेटिक ऑपरेशंस. अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब कि अगर आपको कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करना है, जैसे कि प्लस, माइनस, asterisk means multiplication, forward slash means division, and then it's percentage symbol which is also called modulo, and which we use for divide, like getting the remainder. So I think plus, minus, into and division are already fine. I'm providing int a equals to 200, int b equals 300. Okay, so how add will work? Add will work something like this. सो यहाँ पे आप ऑपरेटर्स के बारे में देख सकते हो. अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में हम इन डेप्थ देख रहे हैं. तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस इज यूज्ड फॉर एडिशन, माइनस इज फॉर सब्ट्रैक्शन, asterisk is for multiplication, then forward slash is for division. But like if you will divide it, the two integer by just by doing it, it will give you the floor value. Floor means it will give you the lower value. Like suppose it will be 1.5, so it will give you 1. And if you want to take float, you have to do it like this. You have to just multiply a by 1.0. It will understand that okay, it's a float and I have the division value as a float. And then if we want to get the remainder, we can use %a. This is also terms as modulo in some case. So let's come to the next operator, which is relational operators, which used to compare the values and return the boolean as a result. So this is pretty much very easy. Like it will say ki either it's equal or not. So just giving an example. Okay, coming to the next operator, that is relational operator. Relational operators are very easy. These are used to compare two values and return a boolean. So like it will say कि either it's equal, not equal, greater than, less than. So यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत basic example लिया है मैंने. There is int a and another is int b. और यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने अलग अलग conditions के लिए I'm trying to
print different output. I'm just trying to build it. So here when I will build it, you can see it is saying a is not equal, or this line will be executed and it will say okay, if a is not equals to b, this will return false, it will not executed. Again, if a not equals to b, which is the case, it is true, so a not equals to b will be printed. A is greater than b, this is false. A less than b, it is true, this will be printed. Again, a greater than equals to b, this is false, it will not be printed. And a less than equals to b, which is this is true, so it will be printed. So b got the desired result. So this is the operator which is used to compare two values and return the boolean value for that. So we are good with the relational operator. So the next type of operator is logical operator. Logical operators used to combine two or more Boolean expressions and it give you desired output. So how it works, let's see. So यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक छोटा सा कोड लिखा है जिसमें कि मैं बता रहा हूँ कि कंडीशन 1 is true and condition 2 is false, and there is the first code will be executed only when both the condition are true. So and operators are used for checking that left and right both condition are true, otherwise it will return a false value. The second thing is OR operator. So OR operator will say कि okay, if either of the condition is true, it will return us a true value. Again, checking NOT operator. What does it mean? NOT means just simply it will say that if the condition is true or not. If it is true, it will just invert the boolean value. Like if it is true, it will become false. If it is false, it will become true. So देखते हैं कोड में, कंडीशन 1 और एंड कंडीशन 2 इज ट्रू, इट मीन्स बोथ कंडीशन आर ट्रू. कंडीशन 1 and कंडीशन 2 either one or both condition are true. In both case, this line will be executed. Condition 1 not, it means if condition 1 is false, only then this line will be executed. Condition 2 not, it means if condition 2 is false, only then this line will be executed. So I hope कि explanation आपको समझ में आया होगा. Now I am building the program and let's see the output. So यहाँ पे अगर आप आउटपुट देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि द आउटपुट इज सेइंग कि दैट आइदर वन और बोथ कंडीशन आर ट्रू. इट मीन्स कि पहला लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुआ है क्योंकि बोथ कंडीशन आर नॉट ट्रू. सेकंड लाइन गॉट एग्जीक्यूटेड. थर्ड लाइन फिर से एग्जीक्यूट नहीं हुआ है क्योंकि कंडीशन 1 इज ट्रू and not will make it false, so it will not be executed. But condition 2 is false and not will make it true, so condition this one will be executed. So here you can see condition 2 is not true is executed. And yeah, this is all about the logical operators. So okay, after logical operator, let's talk about the assignment operator. Assignment operators are pretty much straightforward. So let's see the code. So यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कोड लिखा है. यहाँ पे आप देख सकते हो आंसर इज defined as 5, then I have incremented it by 2, then I have printed the answer, then I have decremented it by 2. Let me just run the program and after that I will show you that how this output is coming. So here the output is 5. It means that we have assigned the answer to 5 and it is getting printed. The other is answer plus equals to 2. It means that we have to increment the answer by 2. So answer will be equivalent to answer plus equals to ans plus 2. It is equivalent to this one, and this is doing it for all. So this is the short form of whatever I have written in the comment. So answer plus equals to 2 is equals to answer plus 2. This is minus 2 into 2 and divide by 2. Again building it. सो हेयर इफ यू विल सी, पहले 5 था, 5 में हम लोगों ने 2 बढ़ाया तो ये 5 हो गया. वापस से हम लोगों ने 2 यहाँ पे घटा दिया तो वापस से ये 5 हो गया. फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 into 2 is 10, एंड देन हमने फिर से 2 से डिवाइड कर दिया, देन अगेन वी केम टू 5. सो दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर, हाउ इट्स वर्क. इट इज़ प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो नथिंग कॉम्प्लेक्स. सो आफ्टर असाइनमेंट ऑपरेटर एक वापस से ऑपरेटर्स के बारे में देखते हैं, दैट इज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, जो ये बहुत ही ज़्यादा आप यूज़ कर रहे होंगे अपने क्वेश्चंस में. सो जस्ट राउट ए सिंपल पीस ऑफ कोड, C++ कोड, जस्ट डूइंग I++, देन आई एम प्रिंटिंग इट. अभी हमने इसका यूज़ किया था फॉर लूप और वाइल लूप, जब हम लोग लूप देख रहे थे. तो दिस वाज द सिंपल लाइक इंक्रीमेंट करने का ऑपरेटर्स हम लोगों ने यूज़ किया था. डिक्रीमेंट करने का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं. लाइक सपोज इन द सेम प्रॉब्लम हम लोगों ने क्या किया था कि वी हैव प्रिंटेड फ्रॉम 1 to 10. अगर वही 10 से 1 तक प्रिंट करना होता तो वी शुड हैव यूज्ड द माइनस माइनस ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर दैट इज़. सो अगर आप आगे बढ़ते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैंने ये एज ए बोनस ऐड किया है. आई विल एक्सप्लेन यू कि वाई आई हैव एडेड इट.
दिस इज फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑपरेटर, तो दैट्स वाई आई एडेड दीज टू लाइन्स। सो पहला दो लाइन तो आपको प्रीटी मच सिंपल होगा। लेट मी रन फर्स्ट टू लाइन फर्स्ट। So this is pretty much simple कि I was 0, you have incremented it and printed the 1, so it will print as 1। अगर आपने 1 को वापस से आपने डिक्रीमेंट कर दिया 1 से, it again came back to 0, right? This is the case। Now अगर हम देखते हैं कि ये चीज़ क्या है, अगर आप गेस कर सकते हो तो just guess the answer कि what it will print, then I will just run the code to show you that what it will print actually। So these are pre and post increment operators, these behaves differently। So I'm just running the command to show you how it behaves। The first one is printing, like in both the cases I have assigned I as 5, and in first case I plus plus is printing 5, but in second case it is printing, and in the second case it is printing 6। Any guesses why? So I told you ki that how I plus plus works, I plus plus work as I equals to I plus 1, right? Okay, in both cases, in case of pre and post increment, the plus plus symbol is assigning I equals to I plus 1. But as the name suggests, pre and post, the one is doing pre means before cout it is doing and then printing, and the other is post, it means it is printing and after that incrementing the value. The first one is post, so here you can see that the increment has done post cout, it means it, that's why it is printing 5, which was the initial value. But after this line, after line number 171, if I will print I here, the value of I will be 6 because I was incremented by one value. But in the second case, in that line itself, before printing the value of I, it has incremented the value by 1, and after that it is printing the value। So just ताकि आपको ये पता चल सके कि ये दो तरीके के इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। सेम इन केस ऑफ आप डिक्रीमेंट के लिए भी कर सकते हो। सो पोस्ट एंड प्री, एंड बहुत से केसेस में हम लोग पोस्ट का यूज़ करते हैं, बहुत से केसेस में हम लोग प्री का यूज़ करते हैं। जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होंगे तब हम लोग देखेंगे किस केस में क्या यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट ऑपरेटर के बारे में देखते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर इज यूज्ड टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन द बिट्स। सो बिट्स क्या होता है कि कोई भी अगर आप नंबर लिख रहे हो, जैसा कि मैंने आपको डेटा टाइप्स समझाते समय बताया कि कोई भी नंबर जो आप स्टोर करते हो दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट्स 0 1, ऐसे स्टोर होता है हमारे डेटा में। सो बिटवाइज ऑपरेटर्स वर्क अपॉन दोज बिट्स एंड वैल्यूज एंड परफॉर्म्स द एक्शन एंड गिव यू द डिजायर्ड रिजल्ट। सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर्स दैट वी यूजुअली यूज इन C++। सो लेट्स जंप ऑन द कोड एंड लेट्स सी कि कैसे क्या काम करते हैं ऑपरेटर्स। The first one is AND of num1 and num2. So I'm just trying to do a AND operator. So AND operator, what it does, what I did here, if you will see, I have wrote the binary representation of num1. So binary representation will look something like this, that the third digit which belongs to 4, the 4, it will be 4 plus 1 5, this will be 2 plus 1 3. So this is the binary representation of 5, this is the binary representation of 3. So and what it will do, it will just like it will create a output and it will just, जैसे कि एंड गेट जैसा काम करता है वैसा ही सेम काम एंड ऑपरेटर का है कि अगर दोनों जीरो है इट विल जीरो, अगर दोनों में से एक भी जीरो है आउटपुट विल बी जीरो, अगर दोनों के दोनों एक है इन दैट केस ओनली द आउटपुट विल बी 1। तो इन दिस केस क्या है कि हमारा आउटपुट बस ये और ये एक है, तो हमारा केस क्या होगा, सिर्फ फर्स्ट बिट जो होगा, जो हमारे आंसर का जो फर्स्ट बिट होगा दैट विल बी सेट, अदरवाइज everything will be not set। so it will be like 0 0 0 0 0 1, so it will print 1 as a output। again I am going ahead with the second thing is or means कि दोनों में से कोई भी अगर 1 है तो it will print 1, otherwise it will be 0। जैसे और गेट काम करता है वैसे ही काम करेगा ये भी। तो फर्स्ट वन इज 0, अगेन 1 1 1, so it will print something like 7। again putting to the जॉर गेट कैसे काम करता है कि अगर दोनों 0 0 है आउटपुट विल बी 0, अगर दोनों 1 1 है आउटपुट विल बी 0, अगर 0 1 है या 1 0 है इन दैट केस द आउटपुट विल बी 1। जैसा कि जॉर गेट काम करता है सेम काम इस बिटवाइज ऑपरेटर का है, ठीक है। तो व्हाट विल बी द आउटपुट, टेल मी। दोनों के दोनों 0 है तो आउटपुट विल बी 0, दोनों में से एक है एक 0 है तो आउटपुट विल बी 1, अगेन 1 एंड देन 1 1 का आउटपुट क्या होगा 0। व्हाट विल बी द आंसर, आंसर विल बी 4 + 2 6। अब num1 को हमने रिप्रेजेंटेशन कैसे दिया है, बाकी इधर सब कुछ 0 था, 32 बिट्स का अगर ये इंटीजर है सब कुछ 0 है इधर, बस ये लास्ट के 4 रिप्रेजेंटेशन ही हमने किया है। तो ये सबको एक कर देगा, जितना भी इधर 0 था सबको एक कर देगा। तो इट विल लुक समथिंग लाइक 1 1, कुछ डॉट लगा देता हूँ मैं,
आफ्टर दैट ये 4 जो लाइन है उसको मैं वापस से लिख देता हूँ। जो 0 था 1 हो जाएगा, जो 1 था num1 के लिए कर रहा हूँ मैं, तो 0 था जो 1 हो जाएगा, जो 1 था वो 0 हो जाएगा, और फिर ये 1 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा। सो व्हाट इट विल बी लाइक, इट विल बी लाइक int max माइनस num1। ये मतलब ये इसके बराबर होगा अगर कंसेप्चुअली हम लोग देखना चाहें। int max विल बी ऑल 1 1 1 1 1, उसमें से हम लोग बस उस 1 को हटा देंगे जो 1 इसमें सेट। तो इट विल बी सिमिलर टू दिस वन, मतलब लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन आई एम सेइंग इट विल बी सिमिलर टू दिस वन। हम बात करते हैं कि लेफ्ट में और राइट में शिफ्ट करने से क्या होता है। तो बेसिकली व्हाट इट डज कि यहाँ पे एक और 0 ऐड करके इसको शिफ्ट कर देगा लेफ्ट में। सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। सो इट विल लुक 1 0 1 0। तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ है, बस एक 0 लास्ट में ऐड हो गया और 1 0 1 शिफ्ट हो गया है लेफ्ट में। राइट में शिफ्ट करने में क्या होगा कि जो लास्ट वर्ड है वो कट जाएगा, बाकी सब 0 0 रहेगा। तो जो सेम थिंग है वही होगा, डॉट 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 0 0 1 0 हुआ क्या, 1 0 1 जो था एक राइट शिफ्ट हुआ, तो ये 1 हट के ये आ गया, 0 1 0 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो सिंपल। अब हम बिल्ड करता हूँ मैं इस प्रोग्राम को। तो यहाँ पर आप देखोगे एक्सप्लेनेशन के हिसाब से हम लोग देखते हैं, तो पहला आउटपुट क्या होना चाहिए था, 1, विच इज़ द आउटपुट। तो यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन मैं करना चाहूँगा कि जो नॉट हैव डिफाइंड इट फॉर num1, इसको मैंने num3 के लिए कर दिया है। अब num3 इज unassigned int, so my explanation that I have provided earlier is for unassigned int. So what it will do, it will be for num assigned int, like अनसाइंड इंट। अनसाइंड इंट मतलब कि इसके पास जैसा कि मैंने इंटीजर में आपको बताया था, जो साइन इंटीजर्स होते हैं उसका फर्स्ट ऑपरेटर जो होता है उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग ये डिफाइन करने के लिए कि आइदर नंबर इज पॉजिटिव और निगेटिव, बट अनसाइंड इंट में इट विल बी ओनली पॉजिटिव। सो टू द पावर 32 तक थोड़ा सा हमारा रेंज बढ़ जाता है। तो जब किसी क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ हो द नंबर विल बी पॉजिटिव ओनली ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यूजिंग अनअसाइंड इंट इज अ ग्रेट चॉइस। अब आगे देखते हैं हम लोग कि नॉट ऑफ num3 किया हम लोगों ने, एंड नाउ ठीक है, तो ये प्रिंट क्या करेगा, ऐसा कुछ प्रिंट करेगा। ठीक है, आफ्टर दैट हम लोग आते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑफ num1 एंड राइट शिफ्ट ऑफ num1। तो लेफ्ट शिफ्ट ऑफ num1 क्या करेगा, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, इट विल मल्टीप्लाई द num1 बाई 2 एंड इट विल डिवाइड बाई द num1 बाई 2। इट इज सिमिलर टू इक्विवेलेंट टू num1 equals num1 into 2, and this one is equals to num1. So these two are similar. So just trying to run the code, let's see कि क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एंड जब हम लोगों ने किया तो जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये कुछ ऐसा बनेगा, दिस इज 1, दिस इज राइट, 7 ओके, 6 ओके, and again this one you can verify, and again this is 10, so this is again multiply by 2, so it will be 10, divide by 2 it will be 2, right? तो बस, तो this was the case for the bitwise operators. So bitwise operator के बाद let's talk about the last operator जो कि है ternary operator, conditional ternary operators के बारे में बात करते हैं। तो let's jump on the code। तो मैंने एक छोटा सा कोड लिखा है यहाँ पे कि temp equals to 5 and I have said कि okay if temp is greater than 10 then we have to print 10, otherwise it's less than। So basically how does it work, basically this is the condition, and if this condition is true then the expression 1 will be executed, if this condition is false expression 2 will be executed। So यहाँ पे जो temp 1 है this is saying कि I am temporary variable temp is greater than 10, which is not true, it means this one will not be executed, this one will be executed। Sorry I missed writing C out। So second one will be executed, and in this case if temp is greater than 4 the first one should be executed। So in our case our temp is greater than 4, so first one will be executed। I'm just building the command। So here you will see that it has printed less than 10 greater than 4। So in both the cases, the first case expression 2 was executed as the condition was false, in second case the condition 1 was executed because the condition was true। That's all for today।
वीडियो का लेंथ लंबा ना हो इस कारण से हम डिवाइडिंग दिस C++ क्रैश कोर्स इनटू 2 पार्ट्स। दूसरे भाग में हम देखेंगे रेस्ट ऑफ द C++ टॉपिक्स लाइक फंक्शंस, रिकर्शंस, स्ट्रक्ट, क्लासेस, पॉइंटर्स के बारे में हम लोग जानेंगे, oops कॉन्सेप्ट्स। सो आई एम एक्साइटेड अबाउट द नेक्स्ट वीडियो। अगर आज के वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो डू हिट द लाइक बटन। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड जब भी हम किसी नए टॉपिक पे वीडियो अपलोड करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में रेस्ट ऑफ द C++ टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।